السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہماری جو سیریز سلسلے وار تذکرہ اولیاء کے عنوان سے آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، جیسا کہ خطبہ مسنونہ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو فرمایا، اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے صاحب ایمان کو فرمائی کہ تم جو ہے میرے سچے بندوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ یعنی ایمان والے کو جہاں اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو یہ بھی فرمایا کہ تم میرے سچے بندوں کی صحبت کو، صالحین بندوں کی صحبت کو، اللہ رب العالمین کے محبوبین بندوں کی صحبت کو، اولیاء اللہ و صالحین کی صحبت کو اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم عطا فرمایا۔ آئیے معزز ناظرین، سامعین محترم، بلا تمہید کے میں اپنے موضوع پر آؤں۔ ہم تذکرہ اولیاء کے عنوان سے سابق میں بھی پچھلے کئی دنوں سے ہم جو ہے اولیاء کرام کے مبارک زندگیوں کے حالات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں وہ شخصیت حضرت بہلول دانا کے نام سے ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت اور آپ کی زندگی کے کچھ مختصر حالات آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ حضرت بہلول دانا کا نام اصل کچھ اور تھا، بعد میں آپ جو ہے بہلول کے نام سے مشہور ہو گئے، اور پوری سرزمین بغداد میں آپ کو بہلول کہہ کے ہی بلایا جاتا تھا۔ لیکن آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت بہلول دانا کا جو اصل نام تھا وہ وہاب بن عمرو تھا۔ وہاب بن عمرو تھا۔ پیدائش حضرت بہلول دانا کی جو ہے کوفہ میں ہوئی، اور جو قبیلہ تھا عرب کا جس سے آپ کا تعلق تھا وہ بنو امان میں سے تھا۔ یعنی حضرت بہلول دانا کا قبیلہ بنو امان میں سے تھا، جو عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ آپ کے والد گرامی کے تعلق سے بھی اور آپ کے تعلق سے بات موجود ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت امام جعفر الصادق کے شاگرد تھے، اور آپ حضرت بہلول دانا حضرت امام موسیٰ الکاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے نا ساتھیوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ کسی نے یہاں تک یہ لکھا ہے کہ آپ بہلول دانا بھی حضرت امام جعفر الصادق کے شاگرد تھے، اور امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا ساتھ کے آپ کا تعلق رہا ہے، یعنی گہرا تعلق رہا، آپ کا دوستانہ تعلق رہا۔ حضرت بہلول دانا کے متعلق یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ جو ہے صاحب حال بزرگ تھے، اور ایک جذب کی کیفیت میں رہتے تھے۔ ایک یعنی سرزمین بغداد میں حضرت بہلول دانا صاحب حال کے نام سے، اور جو ہے صاحب جذب اور بہت ہی اللہ رب العالمین کی محبت میں ہمیشہ مستغرق رہتے، اور آپ کے کئی واقعات حضرت بہلول دانا کے آپ کی سیرت میں لکھے گئے ہیں۔ آئیے حضرت بہلول دانا کے تعلق سے ایک واقعہ جو آپ کی سیرت کا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو وہاں دیکھا آپ نے ایک بچہ ہے جو زار و خطار رو رہا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا اس بچے کے قریب گئے اور جا کے دیکھا کہ بچہ اس لیے رو رہا ہوگا کہ اس کے پاس جو ہے کوئی چیز کھیلنے کی موجود نہیں ہے، کیونکہ حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ جو بچہ رو رہا تھا اس کے بچے کے قریب کچھ اور بچے بھی تھے جن کے پاس اخروٹ وغیرہ تھے، اور وہ بچے جو ہے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ بہلول نے یہ سمجھا کہ شاید اس بچے کے پاس اخروٹ نہیں ہے کھیلنے کے لیے، شاید اس وجہ سے وہ رو رہا ہوگا۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بچے کے قریب گئے، فرمایا کہ بچے کیوں روتا ہے، کہ میں بھی تجھے ایک اخروٹ خرید کر دوں گا تاکہ تو بھی اس سے کھیل لے، رونا بند کر دے۔ تو حضرت بہلول دانا کی یہ بات اس بچے نے سنی، تو حضرت بہلول دانا سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ بہلول، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کھیلنے کے لیے پیدا کیا کیا؟ اللہ اکبر۔
क्या खेलने के लिए मैं पैदा किया है क्या? हज़रत बहलूल फरमाते हैं कि बेटे अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी उम्र तुम्हारी छोटी है, अभी शरीयत के जो अहकाम हैं, नमाज रोज़ा वगैरह अभी तुम पर आयद नहीं हुए, अभी तुम पर फ़र्ज नहीं किए गए, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। तो हज़रत बहलूल दाना के इस जवाब पर उस बच्चे ने कहा कि ए बहलूल, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे खिलकत का मकसद खेल कूद के लिए रखा है क्या, मुझे आप ये बताइए। तो हज़रत बहलूल दाना ने देखा कि ये बच्चा रो रहा है किसी खेल के सामान नहीं होने की वजह से नहीं, बल्कि ये बच्चा रो रहा है खौफ और खशियत की वजह से रो रहा है। तो हज़रत बहलूल दाना ने फरमाया बेटे फिर रोते क्यों हो? फरमाया। तो हज़रत बहलूल दाना के उस जवाब पर उस बच्चे ने कहा कि हज़रत बहलूल सुनिए, मैंने देखा कि मेरी वालदा जब रोज़ाना सुबह चूल्हा रोशन करती है, लकड़ियाँ डालकर आग लगाती है, तो बड़ी लकड़ियाँ पहले लगाती है ताकि उससे आग लग जाए। तो मैं देखता हूँ कि जब बड़ी लकड़ियाँ जो आग नहीं पकड़ती तो मेरी अम्मी जान को मैंने देखा कि वो छोटी छोटी लकड़ियों को पहले डालती है, उसको आग लगाती है, फिर उसके बाद में बड़ी लकड़ियों को डालती है, फिर वही आग छोटी लकड़ियों से बढ़कर बड़ी लकड़ियों को लग जाती है। तो फरमाते हैं वो बच्चा कहता है कि बहलूल मुझे इस बात का खौफ है, मुझे इस बात का खदशा है, कल बरोज़ महशर अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े गुनहगारों को यानी जहन्नुम की आग में डाला जाएगा, तो क्या उस वक्त जहन्नुम की आग नहीं जलेगी तो हम जैसे छोटे बच्चों को कहीं जहन्नुम में डालकर हमारे ज़रिए से आपको कहीं दहकाया ना जाए, इस खौफ की वजह से मैं रो रहा हूँ। फरमाया अल्लाहु अकबर। हज़रत बहलूल दाना ने जब इस बच्चे की बात को सुना तो फरमाया वाक़अतन इस बच्चे के अंदर इस उम्र से ही इतना खौफ और खशियत इलाही और इतने आखिरत का खौफ, और इसी वजह से बच्चा कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को इस दुनिया में भेजा है तो उसका मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है, उसकी मारिफत है। आइए मुअज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन मोहतरम, हज़रत बहलूल दाना के बेशुमार वाक़यात हैं, उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या मैं आपके सामने रखता चलूँ। दूसरा वाक़या है तो हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप जब बगदाद की गलियों से गुज़रते थे, साहिब हाल थे आप, तो जब बगदाद की गलियों से गुज़रते थे तो एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ बाअदब, उसने जो है ज़ानो अदब तय करते हुए आपके सामने अदब से बैठ गया और हज़रत बहलूल से पूछा कि बहलूल मैं क्या कारोबार करूँ, क्या तिजारत करूँ, क्या चीज़ ख़रीदूँ जिससे मुझे नफ़ा हासिल हो जाए। तो हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह से फरमाया कि देख, बगदाद की सरज़मीन पर जितने सियाह कपड़े हैं, काले रंग के कपड़े हैं, वो सारे बाजार से तू खरीद के अपने पास रख दे। फरमाया। उस शख्स ने उठा और बगदाद की सरजमीन से जहाँ जहाँ पर भी दुकानों के अंदर जो है सियाह कपड़े थे, काले कपड़े थे, उन सारे कपड़ों को ख़रीद कर अपने घर में स्टॉक करके रख दिया। कुछ दिनों के बाद हुआ ये कि जो है सरजमीन बगदाद की किसी एक मालदार शख्स का, कोई बड़े शख्स का जब उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया, तो उस वक्त लोग जो है नोहा खानी के लिए ताज़ियत में काले कपड़े पहना करते थे। तो सरजमीन बगदाद की तमाम दुकानों को जो है एक बड़े शख्स के इंतकाल के बाद जब सियाह कपड़ा मंगाया गया तो कहीं पर बगदाद की सरजमीन पर वो कपड़ा नहीं मिला। तो वो शख्स जो हज़रत बहलूल के पास हाजिर हुआ था, उसने हज़रत बहलूल के कहने पर वो सारे सियाह कपड़े अपने पास ख़रीद के रखा था। उस वक्त लोग उसके पास गए, मुँह मांगी कीमतें देकर जो है उससे कपड़े को ख़रीदा और इतना नफ़ा, इतना जो है माल उसने कमाया कि अगर 1 गुना वो कपड़ा ख़रीदा था, 10 गुना और 50 गुना उससे बढ़कर उसने जो है ना माल को कमाया था। अब उसके बाद जब वो मालदार हो गया, इतना माल उसने कमा लिया कपड़ों के एवज़ में, उसके बाद फिर हज़रत बहलूल का किसी वक्त में उसी सरजमीन, उसी गली से उसका हज़रत बहलूल का जब गुजर हुआ, वही शख्स घोड़े पे सवार होकर जो है ना वो खड़े रहकर पूछा, ए बूढ़े शख्स, ए बहलूल, ए बूढ़े बता अब क्या ख़रीदूँ मैं। तो हज़रत बहलूल दाना ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि देख, तरबूज ख़रीद ले तू। फरमाया तरबूज का स्टॉक कर ले। तो उसके बाद में वो शख्स गया सरजमीन बगदाद में, जहाँ जहाँ भी जितना तरबूज था, जितना माल था, वो सारे के सारे उठा लिया और अपने घर में जमा कर लिया। हुआ ये कि कुछ दिनों के अंदर ही तरबूज जो है ना वो माल ख़राब होता हुआ, हत्ता कि जो माल सड़ गया, गल गया, कोई उसका ख़रीदार नहीं रहा, हत्ता कि जो है ना वो पैसों का मोहताज हो गया। वो जितना माल कमाया था वो सारे के सारे माल से उसने तरबूज खरीद के रखा था, मगर कोई उसका कारोबार ना हुआ, कोई उसका ख़रीदार ना हुआ। नतीजतन वो सारे तरबूज ख़राब हो गए, गल गए, सड़ गए। उसके बाद वो कंगाल हो गया, पैसों का मोहताज हो गया। उसके बाद हज़रत बहलूल से
तीसरी मरतबा उसकी मुलाकात हुई तो उस हज़रत बहलूल से उसने कहा कि क्या किया तुमने बहलूल मेरे साथ, क्या किया तुमने मेरे साथ, कि मैं मालदार भी हो गया लेकिन उसके बदले फिर उसके बाद में मैं कंगाल भी हो गया, रुपये का मैं मोहताज हो चुका हूँ। तो हज़रत बहलूल दाना ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मैंने नहीं, तेरी ये जो हालत हुई, हज़रत बहलूल ने फरमाया ये तेरी जो हालत हुई ये मैंने नहीं, तेरे लबे लहजे की वजह से जो है, तेरे लबो लहजे की वजह से तेरा ये हाल हुआ। फरमाया अल्लाह अकबर। उस शख्स ने कहा कि कैसे? फरमाया कि तू पहली मरतबा मेरे पास आया था, बाद मुझसे पूछा था कि मैं क्या करूं जिससे नफ़ा मुझको हासिल हो जाए, कि उसके बाद मैंने तुझे बताया कि सिया कपड़े खरीद के रख। फिर दूसरी मरतबा जब तुम मालदार होकर मेरे पास आया तो तेरे तेवर बदल चुके थे, तेरा अंदाज बदल चुका था, और तेरे अंदर जो मैं और तेरी जो अकड़, इसकी वजह से जो है तेरे लबो लहजे में पहले अदब था जिसकी वजह से तू मालदार हो गया, दूसरे वजह मुलाकात में तेरा लबो लहजे में जो है ना ये बेअदबी थी, जसारत थी, जिसकी वजह से तेरे इस लबे लहजे की वजह से तू कंगाल हो चुका। अदब के साथ आया था तो मालदार हो गया, बेअदब बन के आया और बेअदबी की तू मेरे, तो इस वजह से जो है तू कंगाल बन गया। तो तेरे लबे लहजे की वजह से आज तू इस मुकाम पर है। तो अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों का अदब किया जाए, जब उनकी बारगाह में हाजिर हो अदब के साथ हाजिर हो। हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत में ये बात भी मौजूद है कि हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मरतबा आप जो है बाज़ार में बैठे हुए थे और कोई शख्स वहाँ से गुज़र हुआ। उस शख्स ने हज़रत बहलूल से पूछा, ए बहलूल क्या कर रहे हो? तो हज़रत बहलूल दाना बाज़ार में बैठे थे। उस सवाल करने वाले साइल से आपने जवाब अता फरमाया, सुनो मैं बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। फरमाया बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? तो हज़रत बहलूल दाना ने फरमाया कि अल्लाह तो मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। फरमाया अल्लाह अकबर। अल्लाह तो मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। फिर वो शख्स वहाँ से जवाब सुन के गुजर गया। कुछ दिनों के बाद, कुछ वक्फे के बाद उसका गुजर खबरस्तान के करीब से हुआ। वही शख्स का, हज़रत बहलूल खबरस्तान के अंदर बैठे थे और ख़बर की मट्टी में लूट पोट में थे, आप उसमें मट्टी को अपने ऊपर डाल रहे थे। तो वो शख्स का वहाँ से गुजर हुआ, उसने पूछा कि बहलूल क्या कर रहे हो? तो हज़रत बहलूल दाना ने फरमाया अल्लाह से बंदों की सुलह करा रहा हूँ। फरमाया तो उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? तो हज़रत बहलूल ने फरमाया आज खुदा तो मान रहा है मगर आज जो है बंदे तो मान रहे हैं मगर खुदा नहीं मान रहा। फरमाया पहली मरतबा फरमाया कि आज खुदा तो मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे, बाजार में जब कहा था, और खबरस्तान में कहा कि आज बंदे तो मान रहे हैं मगर खुदा नहीं मान रहा। तो हज़रत बहलूल ने बताया, लोगों कि तुम जिंदगी में तुम रब चाही ज़िंदगी गुजारो, मन चाही ज़िंदगी नहीं गुजारो। कुरान व सुन्नत के मुताबिक अमल करो, अल्लाह को राज़ी कर लो, अमाल सालिहा के ज़रिए से अल्लाह को राज़ी कर लो। अगर तुम ज़िंदगी में जब तक ज़िंदा हो मगर तुम अल्लाह को राज़ी नहीं करोगे और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने वाले वो काम नहीं करोगे और तुम जो है गुनाह करते जाओगे, मरने के बाद जब कब्र के अंदर पहुँचोगे तुम जो उस वक्त माफ़ी चाहोगे तो क्या वो माफ़ी कबूल नहीं होगी। फरमाया लोगों ज़िंदगी को, हयात को गनीमत समझते हुए तुम जो है अल्लाह को राज़ी करने के लिए तुम अमाल करना शुरू कर दो। तो ये हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह तआला अलैह की। और एक हज़रत सैरी सकती रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरा गुज़र कब्रस्तान के करीब से हुआ तो मैंने हज़रत बहलूल दाना को देखा, आप एक कब्र के करीब बैठे हुए हैं, आप एक कब्र के करीब बैठे हुए हैं। हज़रत बहलूल दाना को इस हाल में देखा तो हज़रत सैरी सकती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, ऐ बहलूल आप यहाँ क्यों बैठे? जवाब अता फरमाया, मैं उस कौम के पास बैठा हूँ, मैं उन लोगों के पास बैठा हूँ जो मुझे अजियत नहीं देते, मुझे तकलीफ़ नहीं देते। अगर मैं उठकर चला जाऊँ, गायब हो जाऊँ तो ये मेरी गीबत भी नहीं करते। फरमाया अल्लाह अकबर। ये हज़रत बहलूल दाना की ज़िंदगी के हालात मैंने आपके सामने रखा। हज़रत बहलूल ने सैरी सकती को फरमाया, सैरी सकती मैं उन लोगों के पास बैठा हूँ ये मुझे कोई तकलीफ़ नहीं देते, मैं उठ के चला भी जाता हूँ तो ये मेरी गीबत नहीं करते। फरमाया। और उसके बाद हज़रत बहलूल दाना के पास कोई शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि बहलूल बादशाह ने हुक्म दिया है, बादशाह ने हुक्म दिया है कि क्या हुक्म दिया है? तुम्हें पागलों की मर्दमशुमारी यानी उनकी जो तादाद है मर्दमशुमारी की जाए, उनकी तादाद क्या है वो जो है ना उस तादाद को गिना जाए। तो हज़रत बहलूल दाना ने फरमाया ठीक है, इसके लिए यानी पागलों की यानी मर्दमशुमारी के लिए तो एक दफ्तर, एक रजिस्टर जो है ना दरकार होगा, उतने नाम है।
اور آگے آپ نے فرمایا اگر دانا کہنے کی بات اگر تم کرو گے، سمجھدار لوگوں کی اگر بات کرے تو میں انگلیوں پر گن کے بتاؤں گا دانا کتنے لوگ ہیں. فرمایا پاگل لوگوں کے لیے تو ایک جو نا رجسٹر درکار ہوگا، دانا شخص لوگوں کے لیے تو میں انگلیوں پہ گن کے بتاؤں گا کہ کتنے لوگ دانا ہیں، سمجھدار لوگ. یہ حضرت بہلول دانا کی زندگی کے کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ رب العالمین کی حضور دست و دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو تیرے محبوبین سے محبت کرنے اور ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد